Again, we are going to discuss mathematical typesetting in LaTeX. So we were in the last lecture in chapter 3. In this chapter, we have learned so many things like subscript, superscript, and something what is called changing in style and various type of type cases like italic, emphasize, and small caps. And then various types of symbol we have also seen in the last lecture. Okay, so all these we have covered in the last lecture, and especially we are talking about the sense. So using the symbols or character of another language. All right. So this is what we have seen that how we can create this kind of stuff in LaTeX. Okay. So they are not really just like ordinary English, but they are special kind of alphabets in English. In fact, they are borrowed from another language. Okay, and then we talked about the symbols and all, how we can produce a symbol like this O and then double dot. So thing is that this symbol, if I want to produce this symbol, then I need to type this one. Okay, but thing is that one may be interested in producing a and then a double dot on above. Fine. So here in the place of O or whatever symbol in the braces is written here, so accordingly that we can change. So we will be getting the desired thing. Okay. So I think this is a clear. And then suppose we want this kind of symbol or this kind of symbol. Suppose आपको चाहिए यहाँ पे दो बार कोई और सिंबल आए, ओ की जगह कोई और आए, तो यहाँ पे आपको वो टाइप करना पड़ेगा वो वाला सिंबल, ठीक है ना, जिसके ऊपर आपको कैप चाहिए, ठीक है ना. सो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी. दिस इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस कि आप डॉक्यूमेंट बनाइए, अपना उसमें प्रैक्टिस कीजिए. एंड देन वी वर इन मैथमेटिकल फार्मूला. सो इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं मैथमेटिकल इनलाइन एक्सप्रेशन. सो ये था पैरेंथेसिस का यूज करके, बैकस्लैश पैरेंथेसिस एंड देन क्लोज इट विद ब्लैकस्लैश पैरेंथेसिस. So whatever we type within this bracket, so they will be displayed in math mode. Okay, or we can use a single dollar और begin math और end math ये भी हम use कर सकते हैं, ठीक है ना. In if I want to produce mathematical formula in new line and centered, so we can use this one or double dollar. So all these we have discussed time to time in our lectures. Okay. So let us go further. So this is what we know, that this is exponentiation, subscript and superscript kind of thing. Okay. And then the last topic we taken in the last lecture was fraction, how we write fraction. ठीक है. So यहाँ तक हो गया था fraction, और ये था आपका roots and ellipsis also. I guess we have discussed this one also. So ये सारी चीजें up to ellipsis तक हो चुकी थी, ठीक है. एंड देन इवन एलिप्सिस की कितने टाइप्स थे आपने देखा था कि 3-4 टाइप्स थे, ठीक है ना. L dots, C dots, and then V dots is there, then D dots also. Okay. Next we have something mathematical symbol, and then in that first comes the pi, or and other Greek symbols also, like a small pi and capital pi. We can see here. This is a big pi. This is a small pi. So अगर हमें ये वाला पाई चाहिए तो बैकस्लैश पाई we need to write within the dollar. और अगर हमें बड़ा वाला पाई चाहिए जो कि प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, सो इसको हम बैकस्लैश कैप्स पी जो है कैप्स में रहेगा, बाकी आई स्मॉल में रहेगा, ठीक है. तो ये चीजें, ये सिंबल्स, ग्रीक सिंबल दोनों के लिए हो गए. इसके लिए और भी सारे हैं, ये लोअर केस एंड अपर केस, अल्फा बीटा गामा थीटा, ठीक है. ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी. लेट अस सी आवर फाइल. सो ये ग्रीक सिंबल्स हो गए, ठीक है ना.
एंड देन मैथ कल भी देखा था, कैलियोग्राफिक लेटर भी देखा था आई थिंक, या कैलियोग्राफिक लेटर भी देखा था, और इसके अलावा भी और हम लोगों ने देखा था कि मैथ भी यूज करके कैसे करते हैं, ठीक है ना। और उसका यूज करके हम लोगों ने देखा था कि रियल नंबर का नोटेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। So that was the case. Let us see what was the output. So here we have this is the file we have created. So this title and name, and then something we have written, then so many sections are there, and then special characters we have seen, and then math mode we have also seen, then other notations and math mode also. Fine. So this is a mathematical expression, centered mathematical expression with no number. There is also no number, and then there is a number in the right hand side. So this is a produced when we write begin equation and in equation and equation, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। And then we have list. लिस्ट में दो तरीके का होता था, इनुमरेट होता था और that is list with number, list without number. All right. So ये चीजें होती थी। फाइन। ओके, बुलेट्स के साथ में भी, एंड देन असेंट्स मैथ मोड, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, ठीक है ना। ओके, सो इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये है आपका menagerie of mathematical symbols actually. So menagerie is nothing but this is a collection. We use this word as collection, but they are used usually in relation with the animal and all. If we are talking about some collection of some particular kind of animals and all. So actually they are mathematical symbols, and they have been put in this section collectively. So that's why menagerie, it has given a name. Okay. So there are so many symbols, plus minus, minus plus and times, ये सारी चीजें हैं। तो ये यूजुअली हम ये यूज करते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस टाइम्स, एंड डिवीजन में भी स्टार यूज कर सकते हैं, सर्कल यूज कर सकते हैं, सी डॉट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो सी डॉट होता है, एक सी डॉट्स होता है। सो सी डॉट्स अगर लिखेंगे तो उसमें 3 डॉट्स आएगा, और सी डॉट लिखेंगे तो सिंगल डॉट आएगा, ठीक है ना। ये जो है हमारा, ठीक है। एंड ये समटाइम्स इसको भी हम यूज करते हैं। फाइन। टैगर एंड डबल टैगर, तो ये यूज होता है यूजुअली हम जब कोई फुट नोट वगैरह डालते हैं तब, ठीक है ना। से लेफ्ट एरो, राइट एरो, आई थिंक वी हैव कवर्ड सो मेनी थिंग्स इन द लास्ट लेक्चर। बिग कप एंड इंटीग्रेशन एंड ऑल, ये सारे इसके, अगर ये प्रोड्यूस करना है तो हमें ये टाइप करना होगा, ठीक है ना। सो लेट अस सी वन बाय वन, एंड उसके बाद फिर इंटीग्रेशन अगर वगैरह स्टार्ट होगा, लॉन्ग फार्मूला और फिर ये एरेज, ठीक है। सो लेट अस सी। ओके, सो और इसी फाइल को मैंने जिसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है, इसको डाउनलोड किया, ठीक है, और फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ओपन किया हुआ है। एक्चुअली लेट मी शो यू इन द लास्ट लेक्चर, आफ्टर द लेक्चर लास्ट टाइम समवन वाज आस्किंग सर इसमें जिप फाइल है तो कैसे हम अपलोड करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली में जब यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं, ऐसे मैं डाउनलोड इसको कर रहा हूँ, तो ये हमें जिप फाइल देता है, जिप फोल्डर, ये देखिए आप जिप आ रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं अगर किसी को भेजूँ, ये आप लोगों में से किसी को भेजूँ, एंड आप लोग चाहे मोबाइल में या लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, अगर ये फाइल ओवरलिप पे यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो इस पूरी फाइल को आप इस पूरी फाइल को आप अपलोड करेंगे ओवरलिप पे, ठीक है ना। ये पूरी फाइल जो है ओवरलिप पे अपलोड होगी, ठीक है। पूरा जिप फोल्डर के साथ में ही अपलोड होगा ये, ठीक है ना। आप वैसे नहीं कर पाएंगे कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करके फिर अपलोड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया ये वाला फाइल, ठीक है ना। सो इस फाइल को आप पूरा अपलोड करेंगे, ये जो जिप फाइल है
इसको पूरा अपलोड करेंगे वहाँ पे। ठीक है, जिप जिप को ही अपलोड करना है आपको। ऐसा नहीं कि आप एक्सट्रैक्ट करके केवल ये फाइल अपलोड करिए, नहीं, आपको जिप फाइल ही अपलोड करनी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, सो अच्छा, अब इसी को अगर मान लीजिए आप डेस्कटॉप में सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लिया है, डेस्कटॉप लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, सो आप क्या कीजिए, ये जिप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कीजिए, ठीक है ना, इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, एंड देन let me copy it and then let me paste somewhere। और जब आप इसको पेस्ट करेंगे ना तो प्लीज मेक ए सम फोल्डर, ठीक है। मैंने ये फोल्डर क्रिएट कर लिया है यहाँ पे, बिकॉज जब इसको रन करेंगे तो इसमें बहुत सारी फाइल्स आएंगी, ठीक है। अब ये देखिए आ रहा है, अगर आपको ऐसा सिंबल जैसा ये नहीं दिख रहा है कि वेन एडिट में ओपन हो रहा है, तो आप राइट क्लिक कीजिए और फिर ओपन विद कर सकते हैं, ठीक है ना, एंड देन गो ओपन विद से ये डायरेक्ट तो वेन एडिट में ही ओपन हो जाएगा, अदरवाइज यू कैन गो टू ओपन विद एंड देन यू कैन लुक फॉर द प्रोग्राम, let us wait, something is there, so you can open it either directly if it is showing this kind of symbol, otherwise we can okay, so here we have WinEdit 7। अगर आपने वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो आपको ये आएगा, अदरवाइज यू कैन गो एंड चूज द प्रोग्राम, ठीक है ना। और चूज प्रोग्राम अगर आपको इसमें करना है तो आप जस्ट क्लिक ऑन चूज प्रोग्राम, देन यू विल बी गेटिंग सम। अब देखिए इसमें डायरेक्टली, क्योंकि मैंने कई बार वो किया है इसलिए डायरेक्टली दिखा रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे आप ढूंढ सकते हैं इसमें। अब जैसे इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है ना, सो इस लिस्ट में नहीं आ रहा और आपको यहाँ भी नहीं दिख रहा है, so you can go here look for another app, so it will redirect to C drive। अब इसमें C drive में प्रोग्राम फाइल्स वगैरह होगा, अब आपको ढूंढना पड़ेगा ये कहाँ पे इंस्टॉल है। अब इसमें तो नहीं इंस्टॉल है, मुझे पता है कि मैंने C drive के बाहर ही इसको इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे CTech नाम का फोल्डर है, ठीक है ना। एंड देन आप देखेंगे इसमें बहुत सारी फाइल्स फोल्डर हैं, तो ये देखेंगे आप ना WinEdit जो है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, WinEdit ये एप्लीकेशन, इसको सेलेक्ट कर लेंगे देन ओपन कर देंगे, तो आपको इसी में ओपन करेगा। यू कैन सी दिस वाज द फाइल, और इसको आप रन कराएंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द फाइल फ्रॉम द ओवरलिफ्ट कैन बी रन ऑन दिस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर में आप, ठीक है। तो सेम आपका जो वहाँ पे आउटपुट था वही आउटपुट यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो लेट अस क्लोज दिस वन। ये वही फाइल है जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव किया हुआ है, सो लेट अस गो अगेन। सो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि और सिंबल्स वगैरह, ठीक है ना, ये सारी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ इसमें से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेट अस ओके, सो let us make another section जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और वो करते हैं, ठीक है ना, बिग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और लेंथी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है। सो ये हो जाएगा। अब लेट अस सी, अब इसको हम डबल डॉलर या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। let us write something kind of series or let us write SUM, ठीक है ना। अब सम हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, सम, ये अंडरस्कोर देखिए यहाँ पे भी यूज हो रहा है, सफिक्स के लिए यूज होगा, और यही चीज हमें सम के लिए जैसे n = 1 to infinity के लिए यूज होता है ना, तो वो भी ये काम करेगा, n = 1, और अपर लिमिट जो इसकी हम करेंगे ऐसे करेंगे एक्सपोनेंशिएशन के थ्रू, और इन्फिनिटी के लिए INFTY होता है, ठीक है ना। एंड लेट अस राइट n के ऊपर समेशन है तो हम n लिख देते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ओके, देन प्लस, लेट अस हियर इज प्लस, एंड देन यहाँ पे क्या लगेगा, कौन सा एलिप्सिस लगेगा, C डॉट और L डॉट,
Anyone? Hello. L dot. Anyone else? C dot. Who told C dot? हेलो, प्लीज जल्दी आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए। सी डॉट्स किसने कहा, नाम बताइए प्लीज। दिस इज द प्रॉब्लम, आप लोग एक बार बोलते हैं फिर चुप हो जाते हैं, कहीं डर कहीं गलत ना हो जाए। अरे गलत हो जाएगा तो क्या हो गया, सी डॉट्स ही सही है, क्योंकि हम यहाँ पे ये मैथमेटिकल सिंबल ऑपरेशन से भी यूज कर रहे हैं, ये प्लस आ रहा है ना, तो ये हम यहाँ पे करेंगे। अगर केवल कॉमा कॉमा लगा करके वैसे होता फिर हम वहाँ पे एल डॉट यूज करते हैं, 1 2 3 1,2,3 ऐसे यूज कर देते हैं, ठीक है ना। अगर मुझे फुल स्टॉप लगाना है तो इसके अंदर ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो देगा, so Sir, C dot. okay, so spelling is C dot, so C dots अब सही है। Let us see. C dot is coming, but that this expression is not coming. Okay. Oh, I guess. Oh, this S should be small. Caps on रह गया था, ठीक है। So इस वजह से वैसा वो दिखा रहा था। Let's see. Now we will see the sum kind of thing. ये देखिए आप, ठीक है ना, समेशन आ गया आप ये, ठीक है। सो ये जो सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट है, ये और भी तरीके का यूज होता है, लिमिट में लिमिट लगाने में भी यूज होता है, हो जाता है, ठीक है ना। और अब लेट अस सी हम इंटीग्रेशन का देखते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए INT, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। और सपोज आई वांट टू राइट fx एंड देन dx काइंड ऑफ थिंग, ओके। सो इफ आई वांट सम स्पेस बिटवीन दिस, तो हम ये बैकस्लैश और ये कॉमा ऐसे लगा के लिख सकते हैं, ठीक है ना, fx dx। एंड आई वांट कि ये जो है i इक्वल्स टू हो जाए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंड देन यू कैन कीप फुल स्टॉप और हियर इफ इट इज टर्मिनेटिंग इन दिस लाइन, सो इट्स ऑन। सो ये देखिए आपका fx dx इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुली इट इज कमिंग, दैट इज द थिंग। सो अब इसमें अगर हमें लिमिट्स लगानी है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अब एनी आइडिया, अगर हमें लिमिट्स इसमें लगानी A to B, क्या कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट काम करेगा ना, जैसे सम में काम किया था, ठीक है। सो ये है हमारा x इक्वल्स टू a। अब अगर एक ही है तो आप x इक्वल्स टू a कर सकते हैं, ठीक है ना। अदर मतलब एक ही है तो x लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप A to B अगर मान लीजिए केवल ऐसे A to B लिखना है, A to B। और सिंस यहाँ पे केवल एक ही है कैरेक्टर, तो हमें ब्रेसेस भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो ये ब्रेसेस जो हम लगाते हैं ना, अपने आप प्रोड्यूस नहीं होता है, ये डिस्प्ले में नहीं आएगा। इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ता है, बैक स्लैश लगाना पड़ता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। बाकी सारे तो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये नहीं होता, ठीक है। सो अब यहाँ पे यही चीज़ अगर हमें fx dx लिखना है, डेफिनेट इंटीग्रल की बात मैं कर रहा हूँ। सो दिस विल गिव अस डेफिनेट इंटीग्रल, ओके। लिमिट के साथ में आप देखेंगे,
डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी fx dx, ठीक है। सो इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल दोनों हमने देखा यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ओके, सो हियर इज द आउटपुट फॉर डेफिनेट इंटीग्रल, ओके। और अब हम चाहें तो मान लीजिए TDX करके अगर लिखना है, ठीक ना, तो वो भी हम लिख सकते हैं। सो उसके लिए फ्रैक लिखेंगे, ठीक है ना, फ्रैक लिखेंगे। फिर समटाइम्स वी यूज डी फ्रैक यूज करते हैं, ठीक है ना। डी फ्रैक यूज करते थे, फ्रैक्शन की तरह होता है। सो डी और dx यहाँ पे लिखेंगे, ddx ऑफ सपोज fx लिखना है अगर इसके बराबर में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं fx, फाइन। And then we can compile it and see a derivative kind of thing will be coming. ये देखिए आप, so differentiation के लिए हम dfrac यूज करते हैं, फाइन। और भी और सारे functions होते हैं। सपोज I want बैकस्लैश log करके ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, बैकस्लैश log ऑफ x, ठीक है। सो ये भी प्रोड्यूस करेगा। एंड देन हमें साइन लिखना है, तो साइन बैकस्लैश साइन ऑफ x, फाइन। एंड देन अगर cos लिखना है, बैकस्लैश cos ऑफ x, cos ऑफ x। tan लिखना है, बैकस्लैश tan ऑफ x, फाइन। और बैकस्लैश sec ऑफ x, बैकस्लैश a tan, अगर ऐसे करके लिखेंगे। a tan of x, I think arc10 होता है। Let us see. I'm okay. Otherwise, we will see later in the notation and all. आर्क जब यूज करते हैं तो इसका मतलब इनवर्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे देख रहे हो log x आ गया, sin x आ गया, cos आ गया, tan आ गया, sec आ गया और arc tan x आ गया। ऐसे ही आपको इनवर्स फंक्शन चाहिए और बाकी ओके, तो arc sin, arc cos वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गए, फंक्शंस हो गए सारे, ठीक है। Okay, and then if you want something limit kind of thing to produce limit kind of thing, so let us see how we can produce a limit kind of thing. So backslash limit, okay, and then underscore बहुत ही काम का चीज है ये, आपका सफिक्स में भी यूज होता है, नल लिमिट्स में भी यूज होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट इंटीग्रेशन में लगाने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल में, और समेशन में भी यूज होता है जो कि आपने यहाँ पे देखा, फाइन। और लिमिट में भी यूज होगा। अब लिमिट में जैसे x टेंस टू a लिखना है आपको, तो x बैकस्लैश RIGST a डबल आर ओ, राइट एरो, एंड सपोज x टेंस टू a, तो आप ऐसे लिखेंगे, फाइन। एंड देन लेट अस राइट समथिंग इन फ्रैक्शन। सो अब यहाँ पे तो फ्रैक्शन दो तरीके का आप इसमें डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक हमें डी फ्रैक्ट तो चाहिए नहीं डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना, तो नॉर्मल हम फ्रैक्शन यूज करेंगे। So we can write here something x square and then plus 2021 x and then minus 5, okay, and then in the denominator we can write something, suppose x and plus suppose 21, okay, and then suppose it has some value and let that value be a, so we can write like this, okay, fine. So let us compile. So you can see this expression, this is the expression, fine. So I think this is looking good, fine. So all expressions are very well adjusted and they looks very beautiful, fine. So let us see more. ये हो गया और देखते हैं,
ठीक है, ये सारी चीजें आप ये भी कर ले जाएंगे यहाँ पे, है ना। ये भी अभी ये लेफ्ट साइड जान के राइट साइड भी जान के तो सब लिख सकते हैं, आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। फाइन। और बाकी प्रोडक्ट वगैरह के लिए आप इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट लिखना है, हमें प्रोडक्ट लिखना है स्लैश, ओके, और ये पाई लिख दिया हमने, ठीक है ना। पाई ये प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। और देन अंडरस्कोर, ओके, n इक्वल्स टू 1 टू बैकस्लैश INFTY। और किसका हमें प्रोडक्ट लेना, सपोज n का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं कि ये जो होगा हमारा n के ऊपर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो n की वैल्यू 1 से 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज गोइंग टू बी n। अब देखिए, एक तो ये होता है फैक्टोरियल n। लेट अस सी कि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक ना। सो I guess fact is not defined here. It's not taking. So factorial maybe, or otherwise we use exclamatory sign after n. So I think this is not in dictionary. So, but usually we get that kind of thing. So n and then exclamatory sign for that one. So let us see. So here we have a factorial n. Fine. Okay. So ये है। अच्छा, इसमें जैसे मैंने पाई का यूज किया था, ठीक है ना, लेकिन जब हमें प्रोडक्ट के लिए वो करना है तो मतलब दोनों सिंबल एक ही जैसे दिखते हैं, आप देखेंगे तो ये चीज। तो हियर देयर वाज समवेयर पाई और बिग पाई थे, ठीक है ना। ये वाला देखिए, ठीक है ना। तो पाई और बिग पाई थे। सो यहाँ पे अब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, ये वाला प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको देखते हैं इसमें क्या वो होता है। तो ये स्मॉल पी और स्मॉल पी ही था, ठीक है ना। सो अब इसको आप रन कराएंगे तो, क्योंकि अभी आपने देखा इस एक्सप्रेशन तो लिमिट्स जो है साइड में आ रही थी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन जस्ट अबव एंड डाउन if they are coming. So now this is good. प्रोडक्ट का आप यूज कर रहे हैं तो देखिए ये दिस लुक्स बेटर, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हो गया आपका n equals to 1 to infinity. Okay, and then we have long like formula. समटाइम्स ऐसे होता है, देखिए ये log x y x plus y समथिंग, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। आप चाहे इन लाइन लिखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं इन लाइन एक्सप्रेशन। वी नो द आइडेंटिटी भी कह सकते हैं आप, आइडेंटिटी। और इसको आप लिखेंगे तो आप ऐसे करेंगे LOG log एंड देन वी राइट एक्स वाई। फाइन। अच्छा, इसमें स्पेस देना जरूरी है, अदरवाइज ये एक कमांड ही सोचेगा कि बैकस्लैश log x y एक है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा log x y, देन दिस इज इक्वल्स टू बैकस्लैश log देन x एंड देन वी नो द थिंग दैट दिस इज इक्वल्स टू log x प्लस log y। फाइन। तो ये वो फार्मूला हो जाएगा, एक लाइन में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इन लाइन विद टेक्स्ट, इन लाइन विद टेक्स्ट आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें जैसे यहाँ पे स्पेस नहीं है तो स्पेस आप थोड़ा सा दे सकते हैं, ठीक है। स्पेस अगर आपको देना है तो बैकस्लैश ऐसे करके थोड़ा स्पेस दे सकते हैं, अपने आप, क्योंकि वैसे लेगा नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये डिफरेंस हो रहा था, क्योंकि हमने वैसे स्पेस दिया था। इन दोनों में देखिए, इसमें और इसमें देखिए कि दोनों के आउटपुट में क्या डिफरेंस है। आप देखेंगे तो आप देखिए ये वाला वर्टिकल एकदम पूरी तरीके से आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है, और ये इटैलिक ऐसे करके आ जा रहा है, ठीक है ना।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप कमांड यूज ही नहीं किया आपने, ठीक है, अदरवाइज वो प्रॉपर स्पेसिंग एंड ऑल यूज करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बैकस्लैश मिस कर दिया, यहाँ पे बैकस्लैश हमें लगाना पड़ेगा, और जैसे ही बैकस्लैश लगाएंगे फिर हमें वो आउटपुट जो डिजायर्ड है वो मिलेगा, जो होना चाहिए, ठीक है ना, वर्टिकल हो जाएगा वो, इसी, ठीक है ना, जैसे वो दिख रहा था वैसे ये भी दिखने लगा। चलो बाकी ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला एंड ऑल, डिटर्मिनेंट के लिए डीईटी होता है, डायमेंशन के लिए डीआईएम होता है, इन्फीमम के लिए, लिमिट इन्फीमम के लिए, मैक्सिमम के लिए, ठीक है ना, और ये साइन फंक्शन है, टेन हाइपरबोलिक फंक्शन है, मिनिमम है, ठीक ना, लिमिट का बता ही दिया था मैंने, आर्गुमेंट के लिए ये यूज होता है, ठीक है। सो आप जैसे इसमें इसका कमांड आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये किसके लिए है, क्योंकि मिलता जुलता ही, नाम से मिलता जुलता ही कमांड रखे हुए हैं, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी ऑफ mn इक्वल्स टू a mod b, ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये बहुत सारे यहाँ पे हैं। सो और एरे वगैरह है, लेट अस सी। अब जैसे ये है कि आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इस तरीके से करके लिखा हुआ, एंड देन लिमिट, ये तो मैंने बता ही दी आपको, लिमिट एक्स, लिमिट ऑफ एक्स एज n टेंस टू और x टेंस टू इन्फिनिटी करके समथिंग, यहाँ पे जो भी हो, ठीक है ना, तो ऐसे यूज किया हुआ है। लेट अस सी, अगर मल्टी लाइन एक्सप्रेशन हो तो फिर हम उसको कैसे यूज करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कि बिगिन अरे एंड एंड अरे, ऐसे करके यूज करते हैं, ठीक है ना। सो मल्टी लाइन एक्सप्रेशन में यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स होती हैं, एक और सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन मल्टी लाइन एक्सप्रेशन, ये सेक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं और इसमें देखते हैं कि हम अरेज कैसे करेंगे और मल्टी लाइन एक्सप्रेशंस कैसे करेंगे। तो हियर हैव अनदर सेक्शन, सेक्शन नंबर 7। तो यहाँ पे बिगिन अरे एंड अरे किया हुआ है। तो इस एक चीज़ और इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये है हमारी फाइल, उसी को मैंने यहाँ पे, आप चाहें तो वो पूरा का पूरा मैं एक बार फिर से कॉपी कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ इसको, कॉपी और पेस्ट कर दिया मैंने, लेट अस रन। सी आउटपुट हो गया। सो हियर हम यहाँ पे थे। अच्छा एक चीज़ और दिखाऊं, जो मैंने फोल्डर बनाया था जब उसको मैंने रन कराया था, तो देखिए कई सारी फाइल्स बन के आएंगी। यही न्यू फोल्डर था ना डेस्कटॉप पे जो मैंने बनाया था, आप देखेंगे तो ये न्यू फोल्डर, और इसमें हमने ये कई सारी फाइल है, एक तो पीडीएफ फाइल है और ये टेक फाइल है, ठीक है ना, टेक लिखा हुआ है, यहाँ पीडीएफ लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और ये है। केवल यही नहीं, एक्चुअली में हम लोगों ने रेफरेंसेस वगैरह यूज़ नहीं किए, अदरवाइज इसमें और भी फाइल्स बन के आती हैं, ठीक है ना। हमारी काम की जो फाइल है अभी फिलहाल तो ये पीडीएफ है, अगर किसी को शेयर करना है डायरेक्ट, ठीक है, आपको आउटपुट देखना है तो केवल यही देख लीजिए, अगर आप कोड देखना है तो हम ये भी टेक फाइल शेयर कर देते हैं, ठीक है। सो ये होता है। अब इसको पीडीएफ में ओपन करेंगे तो देखिए पीडीएफ है शेयर करने के लिए, ठीक है। तो दो फाइल्स काम की होती है जो इम्पोर्टेंट है, ये अगर गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर से आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा। तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि ये कहीं डिलीट ना हो, ये वाला, ये पीडीएफ डिलीट हो गया तो चलेगा, इसको रन करा के आप पीडीएफ बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये डिलीट हो गया तो पीडीएफ से आप इसको टेक फाइल नहीं बना पाएंगे, आपको टाइप ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स देयर आर सम सॉफ्टवेयर व्हिच कन्वर्ट फ्रॉम पीडीएफ और टू टेक फाइल, बट उतने इफेक्टिव नहीं है। आई डोंट नो अबाउट द पेड सॉफ्टवेयर, बट जो फ्री है उसमें तो बिल्कुल नहीं है, ऑनलाइन जो टूल्स जितने भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो
ये चीज़ था। अब यहाँ पे हम जैसे जा रहे हैं सॉफ्टवेयर में, मैं ओपन करूँ इसको, तो जिसके पास भी ये सॉफ्टवेयर है तो वो यहाँ से भी देख सकता है, अदरवाइज टाइप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप इंसर्ट में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। एक तो लिस्ट मिलेगा, लिस्ट में हम लोगों ने आइटमाइज और इनुमरेट देखा हुआ है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन नहीं देखा हुआ, केसेस नहीं देखा हुआ है। केसेस हम यूज़ करते हैं जब हम कोई फंक्शन डिफाइन करना हो, दो केसेस में डिफाइन करने हो, ठीक है ना। तो ऐसे हो करके आएगा। अब हम इसमें करना क्या है कि जब भी हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो इसको डबल डॉलर या बैकस्लैश स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। तो यहाँ पे भी ये हम रख देंगे। यहाँ पे स्टार्ट क्या हो रहा है देखिए, ये मैथ मोड में ही रन करेगा। ये लेफ्ट है और ये राइट है। एक्चुअल में आप लोगों को मैंने हेलो डेलीमीटर्स, डेलीमीटर्स नहीं आप लोगों को बताया ना, डेलीमीटर्स। Delimiters. Okay, let us first see delimiter. Ellipsis देखे थे हमने, डेलीमीटर्स। लेट अस सी, हम खुद ही देखते हैं इसको कि डेलीमीटर क्या होता है। इसको पहले हटा देते हैं, डेलीमीटर्स में देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लिख रहे हैं जैसे फ्रैक्शन, ठीक ना, लिख रहे हैं हम, और यहाँ पे क्या करते हैं कि a बाई बी लिख देते हैं, अल्फा a बाई बीटा लिख देते हैं, ठीक है। और इसको हम चाहे हम प्लस लिखते हैं, फाइन, प्लस लिखते हैं हम 2021 लिख देते हैं, और हम ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन चाहते हैं कि ये ब्रैकेट में बंद हो जाए, ठीक है ना। और इसके बाहर हम लिखेंगे सपोज गामा लिख, तो मतलब गामा का प्रोडक्ट है इस सब में, ठीक है ना। और ये इक्वल्स टू सपोज हम लिखते हैं सम आई, और ऑफ कोर्स ये हमारा ब्रैकेट मैथ मोड में होगा, ठीक है ना। इसको हम अगर रन कराएंगे, the same thing you can do in orleaf also. So अब देखिए ये आ रहा है, so ये थोड़ा अजीब दिख रहा है क्योंकि ये ब्रैकेट जो है ना छोटा दिख रहा है ना, कवर नहीं कर रहा है पूरा, so शॉर्ट में दिख रहा है, पूरा कवर नहीं है। so इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ब्रैकेट हमने लगाया है यहाँ पे हम लिखेंगे राइट, बैकस्लैश राइट, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज रहेगा। और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले लिखेंगे लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट में है तो लेफ्ट लिखेंगे। और अब इसको हम रन कराएंगे तो देखेंगे पूरा ये जो ब्रैकेट है उस पूरे एक्सप्रेशन को कवर कर रहा होगा, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है। तो इसी को हम डेलीमीटर्स कहते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हो गया, अब दूसरे अगर ब्रैकेट रहे तो दूसरे ब्रैकेट में भी यही होने वाला है। मैं जैसे करूं कि ये लिख दिया मैंने, ठीक है, और लिख रहा हूँ जिस ए है, अब मैं सेट बनाना चाह रहा हूँ कोई, ठीक है ना। तो मैं करूँगा क्या, क्योंकि करली ब्रेसेस के साथ में हमें बैकस्लैश तो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रोड्यूस नहीं होगा करली ब्रेसेस, ठीक है ना। सो इसमें लिख देते हैं एक्स, उन सभी एक्स का कलेक्शन है सच दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो ये कौन से एक्स, और ये इन बिलोंग्स टू मैथ बीबी, और ये कहाँ का मैंने रियल नंबर का कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका, इन बता चुका हूँ, मैथ बीबी, ये सारी चीजें मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये करली ब्रेसेस आ गया और ये आपका सेट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके अंदर का एक्सप्रेशन अगर बड़ा रहे या फ्रैक्शन में रहे तो फिर क्या करेंगे आप। सपोज इसको मैं लिख देता हूँ, ये जो है इतना ना रह करके, ठीक है ना, ये हो फ्रैक्शन, इससे बड़ा हो, ये 91 कर देते 7/5 से बड़ा हो, ठीक है ना, 7/5 से ये बड़ा हो, ठीक। हम उन सब का कलेक्शन बना रहे हैं। सो
इन दैट केस अब देखिए अभी फ्यूरी अपवर्ड लग रहा है, इट्स नॉट लुकिंग नाइस। सो ये इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा एल बैकस्लैश एल ई एफ टी, ठीक है ना। ये इस ब्रैकेट को बड़ा कर देगा, ठीक है ना। ये इतना तो ब्रैकेट के, अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे ब्रैकेट के बाद ही हमने लेफ्ट लिख दिया था, लेकिन इसमें जो पहले हमें बैकस्लैश लगाना पड़ा था तो उसके पहले लिखेंगे बैकस्लैश लेफ्ट लगा करके। केवल बैक इस बैकस्लैश के साथ लेफ्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी हमें क्लोज करने के पहले बैकस्लैश RIGST ये करना पड़ेगा। और लेट अस रन एंड सी, देखिए ठीक है, नाउ इट्स लुक ब्यूटीफुल, ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है, ठीक है ना। और अब क्वेश्चन ये है कि सपोज अगर हमें दो हमने पैरेंथेसिस देख लिया, करली ब्रेसेस देख लिया, एक ब्रैकेट और हमारे पास होता है ना, कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट तो यहाँ भी यूज हो रहा है, ठीक ना, अभी बैक स्लैश के साथ में। तो देखते हैं, अब हमें मान लीजिए लिखना है कि x, कुछ हम लिखते हैं fx इक्वल्स टू x to the power, suppose I'm writing 2 to 1। so क्योंकि इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं तो इसलिए हम पैरेंथेसिस लगा रहे हैं। अगर केवल एक ही होता ना तो मैं केवल यही लिख देता, इसी में काम चला लेता, ठीक है ना। और थोड़ा सा स्पेस दे करके मैं लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू द सेट, क्लोज इंटरवल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें करते हैं कुछ 1, और क्योंकि हमें बड़ा इसको दिखाना है कि कैसे हम बड़ा बनाएंगे तो लेट अस सी फ्रैक्शन लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। और 7/5 के उस बीच में, 7/5 7/5 इसके बीच में, ठीक है ना। तो once let us see if we execute this one, so we are getting like this, okay, so not bad, not looking good, fine। so हमें इस ब्रैकेट को भी बड़ा करना पड़ेगा। so what is option for this one, any idea? hello, left and right only, so nobody is interested, I guess। so here we have अब आप देख सकते हैं कि बड़ा ब्रैकेट भी आ गया और ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना। सो कुल मिला के बात ये है कि हमें जब भी ब्रैकेट्स को एडजस्ट करना है टेक्स्ट की हाइट के हिसाब से, ठीक है। सो फिर हम बैकस्लैश लेफ्ट और बैकस्लैश राइट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे वो लिखकर, ठीक है ना। सो ये हो गया, ओके। सो अब हम देखते हैं fx इक्वल्स टू समथिंग अगर हमें लिखना है तो यहाँ पे हम आएंगे लिस्ट में और आएंगे केसेस में, बताऊंगा मैं वहाँ पे भी टाइप करके एक एक चीज में। तो सबसे पहले तो ये चीज हमें डबल डॉलर में या फिर आप इसमें आप क्लोज करेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट इक्वल्स टू। अब यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है तो ये लेफ्ट किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि ये ब्रैकेट ये बड़ा बनाने के लिए, ठीक है ना। करली ब्रेसेस को बड़ा, ये क्या करेगा, करली ब्रेसेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, एक साइड का करली ब्रेसेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और लेफ्ट क्या करेगा, उस करली ब्रेसेस को बड़ा करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आता है एरे, ये पूरा एरे का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एरे का स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पे जो L लिखा हुआ है तो ये L का मतलब लेफ्ट जस्टिफाइड है इसमें। तो एक बार हम लोग इसमें करके देखते हैं कि ये सपोज हमारा x है, या फिर हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम साइन x, बैक स्लैश लिखते हैं, बैक फ्लैग x। यहाँ h बॉक्स में हम लिखेंगे, भले ही यहाँ पे हमने डॉलर या स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है, h बॉक्स में हम यूज करेंगे कब साइन x/x वैल्यू है उसकी। तो इसके लिए अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो हमें डॉलर, सिंगल डॉलर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एरे में ऐसा करना पड़ता है हमें। सो ये कब है, जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक।
और साइन x बाई एक्स 1 है कब, जब x इक्वल्स टू 0 हो जाए। सो आई मेंटेन इन द कॉन्टिन्यूटी। अब यहाँ पे कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है एक्चुअल में, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है तो आप इसमें डॉलर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं उसमें, ठीक है ना। लेट अस कीप डॉलर आल्सो। और हम रन कराते हैं इसको, रन करा के देखते हैं कि आउटपुट क्या होगा। सो आप ये देख रहे हैं साइन एक्स बाई एक्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 x इक्वल्स टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0 यहाँ पे होना चाहिए, इसे मैंने लिखा है x इक्वल्स टू 0 पे है ये, ठीक है ना। x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 पे होगा। ये साइन x बाई x है। आई गेस साइन के पहले मैंने s बैकस्लैश नहीं लगा इसलिए वैसा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। ओके और इसमें क्या कमी है, यहाँ पे लेफ्ट में कुछ लिखना चाहिए ना, एफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग, लेफ्ट साइड में करली ब्रेसेस के। और आप देख लेना ये करली ब्रेसेस जो है बड़ा सा दिख रहा है, छोटा नहीं दिख रहा। अब इसमें जितने भी आप चाहे ना उतनी चीजें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले लिख देंगे एफ एक्स हम डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। तो एफ एक्स जो फंक्शन हमने डिफाइन किया, दो केसेस में डिफाइन किया हुआ है, दो केसेस में हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। चलिए अच्छा, और हम एक काम करते हैं, अब हम वहां से इंसर्ट ना करके हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना। ये हमने यूज कर लिया है, ठीक। और अब हम करते हैं कोई फंक्शन हम डिफाइन करते हैं कैपिटल एफ एक्स, ठीक। एक्स हो गया ये, एफ एक्स इक्वल्स टू हो गया, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें फंक्शन डिफाइन करना है इन वेरियस डोमेन। तो हम क्या लिखेंगे, LEFT लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे, बैकस्लैश लिखेंगे, ठीक ना, और करली ब्रेसेस लगा देंगे। ये क्या करेगा, करली ब्रेसेस पूरे उसके लिए प्रोड्यूस करेगा। आते हैं हम नीचे, ठीक है ना। अब हम एरे प्रोड्यूस करते हैं, बिगिन एरे और एंड एरे हम लिख देते हैं ये पे, ठीक है। बिगिन एरे और एंड एरे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस एक्सप्रेशन में, तो यहाँ लेफ्ट में है ये, जैसे होता है ना कि कोई आप टेबल बनाते हैं, उसमें आपने एक्सेल में काम किया होगा, तो उसमें सेल के अंदर में आप देखते हैं कि कई बार लेफ्ट में कहता है रखने को, कई बार राइट में, कई बार टॉप में, कई बार बॉटम में, कई बार सेंटर में, है ना, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी होता है। तो जो एक्सप्रेशन ये लाइन स्टार्ट हो रहा है ना, तो लेफ्ट में ही रखा हुआ है। अगर हम सी करेंगे तो यहाँ पे अगर हम सी कर दें, ये हम सी कर दें, तो क्योंकि दो चीजें है ना, एक तो ये है, एक ये है, दो पार्ट है इसके एरे के, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, ठीक है ना, दो पार्ट है एरे के एक्चुअल में। सो एरे का स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है, एरे में अगर आपको दो रखने हैं केवल, ठीक है ना, दो पार्ट रखने हैं, मतलब दो कॉलम या दो बनाने, तो आप ऐसे ये जो होता है ना सेपरेटर होता है, अलाइनमेंट कैरेक्टर होता है। एन जो है अलाइनमेंट कैरेक्टर होता है, एन क्या होता है, अलाइनमेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। और इसको हम लेफ्ट में यहाँ भी रखना चाह रहे हैं, तो एल करके यहाँ पे भी लेफ्ट में अलाइन करेगा, यहाँ भी लेफ्ट में अलाइन करेगा, दोनों तरफ अलाइन करेगा वो, ठीक है। एफ एक्स को डिफाइन करना है, तो लेट अस राइट, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं और दूसरे में ऑप्शन में लिखते हैं एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, अपने मन से, ठीक है। और तीसरे में सपोज हम एक्स टू द पावर 5 लिख देते हैं, या x प्लस 5 लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ओके। यहाँ पे अब ये कब x कब है, तो इसके लिए हम जैसे यहाँ पे लिखा होगा एन एच बॉक्स, तो ये हमें यूज करना पड़ेगा ये चीजें। तो ये दूसरा ब्लॉक में ये आएगा एच बॉक्स, ठीक है ना। x आपका नॉट x, एक तो सपोज हम कर देते हैं x इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, ठीक है ना, फाइन, x इक्वल्स टू 0 कर देते हैं यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे जो है हम कॉमा लगा सकते हैं, कॉमा लगाने के बाद दूसरा लिखना, अगर कॉमा आप नहीं चाह रहे तो नहीं भी लगाइए, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे x सपोज ग्रेटर देन 0 के लिए ये है, ठीक। और यहाँ पे हम सपोज x लेस देन 0 के लिए, तो ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो के दोनों एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन और ये भी एक्सप्रेशन, बोथ आर कमिंग इन न्यू लाइन, ठीक है ना। सो न्यू लाइन के लिए कौन सा, ये जो है डबल बैकस्लैश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए एक, और यहाँ पे चाहिए
अब इसके नीचे कोई लाइन है नहीं, तो हमें यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा। ये जो है आपका डबल डॉलर या स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हमें और थोड़ा पास लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब रन करा के हम देखते हैं। ओह, सो समथिंग इज मिसिंग, क्योंकि जब हम लेफ्ट लिखते हैं तो इसका काउंटर पार्ट बैकस्लैश राइट होता है, लेकिन वो मिसिंग है, वो इसमें नहीं है। तो हम उसको काउंटर करते हैं ये राइट लगा के और डॉट लगा के, डॉट पीरियड लगा देते हैं, तो इसका मतलब वो क्लोज कर देता है उस चीज को, ठीक ना। ये क्या आएगा, डायरेक्टली इसके बाद आएगा, किसके बाद आएगा, एरे के बाद आएगा। सो लेट अस राइट जीएस राइट एंड डॉट। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे ये मैच कर जाएगा ब्लू और ग्रीन करके, ठीक है ना। सो अब ये चीज कंप्लीट हो गई, पूरा एक्सप्रेशन, और आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है ना। सो ये है जैसे हम फंक्शन नया डिफाइन करते हैं कई सारे केसेस में।